Ladies and gentlemen, as the world navigates geopolitical shifts and economic realignments, India stands at a defining moment in its growth journey, presenting a powerful and timely discussion, surviving Trump and Tehran, how India's domestic dynamo fuels the 2040 supercycle. May I invite our moderator, Mr. Anshuman Tiwari, editor, Amar Ujala Limited, a veteran media strategist and award-winning editor shaping the future of journalism and digital storytelling. As the editor at Amar Ujala, he brings over 3 decades of experience in economic analysis, media innovation, and content strategy. We welcome you, sir. Joining him, Mr. Saurabh Mukherjee, Chief Investment Officer, Marcellus Investment Managers, a renowned investor, best-selling author, and thought leader in equity markets. He is widely respected for his insights on wealth creation, investment strategy, and economic trends, shaping how India understands long-term investing and financial discipline. Over to you, sir. Thank you. Though Saurabh has requested me that he want to speak more in Hindi rather than English. Very maa boli Hindi. English because he said he does not have his maa boli as Hindi. He is primarily a Bang. Class 3 में हिंदी फेल भी हुआ था मैं. And grown up in Hindi zone in Delhi and studied in London. So he would like to speak more in Hindi, but I'll try to mix it up. That very interesting starting. We are discussing a lot of things on the sidelines here, several conspiracy theories and what's happening in the globe. And then the Bali sir was saying, was here, and he said that, then I reminded me an old Punjabi saying, ki sher ka puttar sher hi hunda hai. That's a very old Punjabi saying. But sort of when you see the market doesn't care about this bloodiness. Market actually respects those who can see the field when the dust is blinding everyone. And I'll give you an anecdote. 2007 World Cup, T20 World Cup, in this part of the world, Yuvraj Singh came out to face Stuart Broad. No panic, no bravado. He simply came with an absolute clarity that what he's going to do that. And then 6 balls, 6 sixes. Crowd didn't see it coming, bowler didn't see it coming, but probably Yuvraj Singh knows from the very first moment when he stepped into the field that what he's going to do and what his innings demand from him. And if I'll say that, add to the finest, the investment banking is exactly that. It's not that you are going to respond every ball, but you know with the data and evidence how the innings are going to shape up in the future. And that is why we have Saurabh Mukherjee here. Yeah. Saurabh Mukherjee is not a usual investment banker investment manager whom you listen on the TV. He is a passionate money manager. Very passionate, and he has a very special ability to avoid noise and keep the things which are very evidence backed and data backed on the table. Though he has been graduated from London School of Economics, he came to India, he established Ambit Capital as a powerhouse and left at the peak and created his own Marcellus Investment Managers. It's managing close to 10,000 crore rupees. Half a billion. So half a billion funds right now. So, but all these things, he's a writer. He has written 6 books on economy and markets, investment. He is probably one of the very few investment managers in Mumbai whom I meet every day, who writes so much. Every year you'll find a book of Saurabh comes there. But having said so, why we have invited him here today is that because the fundamental reason is that most important for today that he has a view. He has a point of view and a very sharp, unhedged, evidence-based view. Whether India survives Trump, survives Tehran, and also survives to its own contradictions and still fuels the 2040 super cycles.
So please welcome Saurabh Mukherjee with a round of applause, and then we'll start our negotiations. Thank you. Saurabh would like to say something to begin. Then I'll start my. प्रयास करेंगे. I'll try with हिंदी because मुझे बॉम्बे में हिंदी बोलने का चांस मिलता नहीं है एंड यहाँ पे इतनी अच्छी पंजाबी सुनी. अनफॉर्चुनेटली मुझे पंजाबी आती नहीं है, माफ़ कीजिएगा, बट हिंदी में प्रयास करेंगे. सो रादर देन माई स्पीकिंग नो एंड योर लिसनिंग, आप काफ़ी लोग यहाँ पे बोर्ड भी लग रहे हैं, तो रादर देन माई स्पीकिंग एंड योर लिसनिंग ऐसा करते हैं, क्विज करते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जहाँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, यू गाइज आर चंडीगढ़ फाइनेस्ट. ठीक है. सो अंशुमन पूछ रहे थे कि कैन इंडिया सर्वाइव ट्रम्प, कैन इंडिया सर्वाइव तेहरान. तो आई थिंक आंसर्स आपके पास है. तो पहला क्लू मैं देता हूँ. सो आई गॉट हियर कपल ऑफ आवर्स अगो, थोड़ा जल्दी आया था, तो जब जल्दी आया था, टाइम पास कर रहा था, आई वेंट आउट एंड फाउंड आउट प्रॉपर्टी प्राइसेस क्या हैं आपके इस इलाके में. प्रॉपर्टी प्राइसेस क्या है. तो सामने इस होटल के सामने एक हॉस्पिटल बन रही है. ठीक है, जस्ट अक्रॉस द रोड हॉस्पिटल बन रही है. इट्स अ रीजनेबली स्मॉल प्लॉट, इट्स नॉट अ बिग प्लॉट. उस प्लॉट का भाव कितना होगा किसी को पता है? यहाँ पे जस्ट अक्रॉस द रोड हॉस्पिटल बन रही है चंडीगढ़ में. आई प्रिज्यूम दिस इज अ प्रीटी एफ्लुएंट पार्ट ऑफ चंडीगढ़, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. चंडीगढ़, इज दिस एन एफ्लुएंट पार्ट ऑफ चंडीगढ़? हायत रीजेंसी यहाँ पे है, किसी को खबर है सर एफ्लुएंट पार्ट ऑफ चंडीगढ़? दिस इज द इंडस्ट्रियल फेज. तो सामने जो जमीन है 120 करोड़ की है. इट्स अ स्मॉल हॉस्पिटल, इट्स नॉट अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. वहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल बन रही है. ठीक है, मैटरनिटी हॉस्पिटल बन रही है 120 करोड़ का, 100 बेड्स. ठीक है. नाउ देयर आर सेवरल बिजनेस पीपल इन दिस रूम. आप मैथ्स कीजिए, राइट? इफ द लैंड कॉस्ट 120, जस्ट रफली हॉस्पिटल बनाने का खर्चा आएगा रूल ऑफ थंब पे 120 को मल्टीप्लाई कीजिए बाई टू, अराउंड 200-250 करोड़ का आप हॉस्पिटल बनाओगे. ठीक है. 100 बेड हैं यूजुअली. गायनेक एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल 70% यूटिलाइजेशन पे चलता है. पैसा बनेगा क्या चंडीगढ़? हाँ या ना? सामने जो हॉस्पिटल बन रही है, पैसा बनेगा क्या? रिटर्न ऑन कैपिटल बनेगा क्या? बनेगा. अच्छा, ठीक है. सो कॉन्फिडेंस है बनेगा. अक्रॉस द कंट्री व्हेन आई एम ट्रैवलिंग अराउंड नहीं बन रहा है, राइट? नहीं बन रहा है बिकॉज हमारे देश में जिस भाव पे जमीन बिक रही है, इट्स नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम हियर, अक्रॉस द कंट्री जिस भाव पे जमीन बिक रहा है फॉर हॉस्पिटल्स, फॉर होटल्स, फॉर फैक्ट्री लैंड, एट दिस प्राइसेस ऑफ लैंड 15% रिटर्न ऑन कैपिटल लाना मुश्किल हो रहा है, राइट? इट्स नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम हियर, अक्रॉस द कंट्री. ये मैं बॉम्बे में रहता हूँ, महाराष्ट्र में सेम प्रॉब्लम है. ठीक है. नाउ व्हाई आर लैंड प्राइसेस सो हाई इन आवर कंट्री? व्हाई आर रियल एस्टेट प्राइसेस फॉर वेदर इट्स इन द रेसिडेंशियल लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड? वो एक दूसरा मुद्दा है. अंशुमन, कभी और हम लोग उस पर बात करते हैं, कभी और उस पर गौर करेंगे. बट आई थिंक पहला अगर हमको समझना है, कैन वी सर्वाइव ट्रम्प एंड तेहरान? ट्रम्प क्या कर रहा है? ट्रम्प का कहना है, मैं दुनिया में जो भी कंट्री मेरे साथ हाँ पे हाँ नहीं मिलाएगा उस पे ऊपर गोली चलेगी, राइट? तेहरान में यू सॉ व्हाट हैपेंड इन वेनेजुएला. आई थिंक उसकी उम्मीद थी कि तेहरान में भी वही करेगा जो वेनेजुएला में किया. वेनेजुएला ने, आपको पता ना क्या किया उसने? प्रेसिडेंट को उठा लिया और फिर द लेस पब्लिसाइज्ड पार्ट, देश की तिजोरी खाली कर रहा है. उसकी उम्मीद थी कि तेहरान में भी वही होगा. रिमेंबर, पहले दिन में, पहले 24 घंटे में उन्होंने ईरानियन लीडरशिप को उड़ा दिया मिसाइल से. बट द इरानियंस टर्न्ड आउट टू बी स्मार्टर. बट दिस इज नॉट गोना स्टॉप. ये माहौल बरकरार रहेगा दुनिया में. ट्रंप का आक्रमण अलग अलग देशों के ऊपर. ऐसे माहौल में आपका तेल का भाव ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, राइट? इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे. वैसे माहौल में इफ वी आर टू सर्वाइव इन अ कंट्री विद एक्सपेंसिव लैंड, मेकिंग मनी फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, वेदर इट इज हॉस्पिटल्स और हाई राइज अपार्टमेंट ब्लॉक्स इन बॉम्बे या होटल, पैसा बनाना मुश्किल रहेगा. सो आप पूछ रहे थे कैसा होगा, विल वी सर्वाइव ट्रम्प एंड तेहरान? आई थिंक पहला मुद्दा रहेगा हमारे देश में लैंड प्राइसेस. अगले 2 से 3 साल में लैंड प्राइसेस पे आप देखोगे जबरदस्त प्रेशर आएगा, राइट? सो आई एम नॉट गोना गेट इनटू माइक्रो मार्केट्स, बट अगर वो बहस किसी को करनी है, आई एम हैवी टू डू इट ऑफलाइन. दूसरा मुद्दा, रुपये अभी 94 पे है. ठीक है, रुपये अभी 94 पे है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल होटल. आई कैन सी ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. हमारे देश में ये जो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंक्लूडिंग दिस माइक, इज इम्पोर्टेड. ठीक है, आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, सबके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो इम्पोर्टेड है. हम करीबन एज अ कंट्री हम करीबन $400 बिलियन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इम्पोर्ट करते हैं, एंड वी पे फॉर दैट थ्रू
IT services, right? So the speaker, not the speaker, not Mr. Bali, but the gentleman from Datta Saab from Fractal, he explained that हम लोग AI का इस्तेमाल करेंगे. इंडिया $400 बिलियन, $300 बिलियन IT सर्विसेज बेचती है और हमारे दोस्त मित्र बाहर $100 बिलियन का रेमिटेंस भेजते हैं. उस 400 बिलियन के कमाई से हमारी विदेशी चीज़ें खरीदी जाती है. ये जो हमारी कमाई आती है आईटी सर्विसेज से, ये क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी एआई के ज़माने में? किसको लग रहा है घटेगी? मैं घटेगी वाले कैंप में हूँ, बिकॉज दत्ता साहब ने, आप पीछे आप सहमत हो, बट दत्ता साहब एक्सप्लेन्ड राइट शुड मेक अस वेरी वरिड, बिकॉज व्हाट ही सेड एंड ही इज राइट कि एआई बहुत सारे काम करेगा जो आज के डेट में हमारे युवा करते हैं, राइट? एज ही एक्सप्लेन, वो एजेंट एंड असिस्टेंट का काम जो उन्होंने समझाया, इसका असर आप देखिए बेकारी की समस्या के ऊपर. इंडिया प्रोड्यूसेस 80 लाख ग्रेजुएट्स अ ईयर, 80 लाख ग्रेजुएट्स. जो इस साल का डेटा है, आउट ऑफ दिस 80 लाख ग्रेजुएट्स जस्ट 3% आर गेटिंग जॉब्स, जस्ट 3%. क्यों? बिकॉज जो बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं, जस्ट लाइक मिस्टर दत्ता सेड, बड़े बड़े टेक कंपनीज बोल रहे हैं इंसान का इस्तेमाल कम, एआई का इस्तेमाल ज़्यादा. So if they are saying it, Jamie Dimon at JP Morgan in New York is also saying it. No, Jamie Dimon is not going to hire some Indian dude to say, भैया तू मेरे लिए Chat GPT चला दे. He will say, यार मैं खुद कर लूँगा Chat GPT का इस्तेमाल. So as our IT services exports dwindle, currency पे जबरदस्त pressure आएगा, right? So the second challenge we'll face in the age of Trump and Tehran is currency जाएगी 100 की तरफ, साथ ही साथ RBI interest rates बढ़ाएगा और साथ ही साथ ज़मीन के भाव पे प्रेशर आएगा. दैट्स ब्रॉडली द लैंडस्केप आई एम सीइंग. आई नो यहाँ पे चंडीगढ़ के दिग्गज उद्योगपति है, हैप्पी टू बी कॉन्ट्रडिक्टेड कि इन अ माहौल ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, फॉलिंग करेंसी एंड राइजिंग ऑयल प्राइसेस विल बी एबल टू सस्टेन 120 crores फॉर अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इन चंडीगढ़. मेरे मैथ्स में नहीं बैठता. सौरभ, एक सवाल जो लोगों के दिमाग में इस समय है, जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि व्हेन यू स्टार्ट विद सौरभ, इट्स लाइक द क्लैरिटी यू कैन गेट दैट हाउ द थिंग्स कुड बी सीन बियॉन्ड द डेटा. दैट्स व्हाट वी लाइक इन आवर नेगोशिएशन. मैं आता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल के भाग जाऊंगा, मैं आता रहता हूँ. तो अगर आपको मिलना है, विल कीप मीटिंग एंड आई एम हैप्पी टू बी टोल्ड दैट 120 करोड़ में जमीन खरीद के हॉस्पिटल लगा के पैसे बना सकते हो आप चंडीगढ़ में. सौरभ, द क्वेश्चन विच पीपल वुड लाइक टू आस्क अभी जो हमारे दिमाग में है, एक साल के अंदर इंडिया ने 3 शॉक देखे. पहले पाकिस्तान के साथ एक कन्फ्लिक्ट देखा, ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स देखे 50% के प्लस के, और उसके बाद तेहरान देखा. स्टिल इफ वी सी द जीडीपी प्रिंट इज इंडिकेटिंग 6%, 6.5% समथिंग. सो हम एक्चुअली हमारा रिजिलियंस है या हम भाग्यशाली ही हैं, किस्मत से ही खेल रहे हैं? तो देखिए, मैं सिंपल इंसान हूँ, मैं सरकार का टैक्स कलेक्शन देखता हूँ. भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन का डेटा फ्री मिलता है, तो सरकार के वेबसाइट में मिलती है. आजकल अखबारों में नहीं आता, सरकार के वेबसाइट में लेकिन मुफ्त में ये डेटा मिलती है. सो जो साल अभी खत्म हुआ, राइट, द ईयर एंडिंग March 26, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, एडवांस टैक्स का डेटा सरकार ने छाप दिया है. एडवांस टैक्स कलेक्शन मतलब कॉर्पोरेट्स का टैक्स कलेक्शन ईयर एंडिंग March 26 में 7% से ग्रो किया. ठीक है, टैक्स कलेक्शन अगर 7% पे ग्रो करेगा तो जाहिर है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स उसी पैमाने पे ग्रो किए हैं. रिमेंबर, सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट की छेड़छाड़ नहीं की. सो अगर टैक्स कलेक्शंस ग्रो एट 7%, दिस इज कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस ग्रो एट 7%, जाहिर है कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिट 7% पे बढ़ी. पूरे देश की बात कर रहा हूँ. तो मानिए इन्फ्लेशन 3% मान लेते हैं, तो इकोनॉमी की ग्रोथ आती है मोटा मोटी मेरे ख्याल से, यूजिंग गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन डेटा, इकोनॉमी की ग्रोथ मेरे ख्याल से 4 से 5 के रियल की बात कर रहे हैं, बिफोर द ईरान का झटका. एंड दैट ब्रॉडली कोरिलेट्स. अनुष्मान, अगर आप FMCG का, तेल साबुन का बिक्री देखो, आप मोबाइल फोन्स, टीवी, वाटर हीटर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का बिक्री देखो, ब्रॉडली 3 से 4 के बीच में हम ग्रो कर रहे हैं. विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई द ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा खड़ा हुआ है. शिक्षित बेकार बोलते हैं हम इसको हिंदी में, शिक्षित बेकार, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं. 80 लाख ग्रेजुएट. 10 years ago इंडिया यूज्ड टू हैव 60 लाख ग्रेजुएट्स. अभी हर साल 80 लाख ग्रेजुएट, लेकिन जॉब्स की बेहद कमी, बिकॉज आई थिंक इकोनॉमी में उस पैमाने पे ग्रोथ है नहीं. सर, मार्केट को देखें, जो आपने जिस एनालॉजी का और जिस एनालिसिस को किया, क्योंकि बहुत सारा डेटा हम लोग इंडिकेट करें, अगर आप मार्केट को देखें,
एफपीआईज ने $13 बिलियन के आसपास का सेल किया, डीआईए कंसिस्टेंटली खरीद रहे हैं, उस हिसाब से निफ्टी उतना नहीं करेक्ट हुआ। तो लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि बाजार को कौन सही पढ़ रहा है, एफआई सही पढ़ रहे हैं या डीआईए पढ़ रहे हैं जो हमारा पैसा लेके मार्केट में लगा रहे हैं? अंशुमन ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सिनेरियो व्हिच वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। अंशुमन ये पूरे दुनिया का रिवाज है, किसी भी मार्केट में, यूएस की बात करें या इंडिया में, जो सबसे ठंडे दिमाग वाला इन्वेस्टर होता है, जो सबसे पेशेंट होता है, वो सबसे लॉजिकली सोचता है, राइट? और जो गर्म खून वाला होता है, जिसकी इनएक्सपीरियंस होती है या जल्दबाजी होती है, वो धड़फड़ाहट में काम करता है। सो जस्ट कंसिडर द सिचुएशन हियर। अभी द ईयर एंडिंग मार्च 26 विल बी द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, तीसरा लगातार साल जहाँ पे निफ्टी 50 हमारे देश का सबसे बड़ा इंडेक्स है। ईयर एंडिंग मार्च 26 विल बी हमारा तीसरा लगातार साल जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आई है अराउंड 5-6%, ठीक है, सेम एज टैक्स कलेक्शन ग्रोथ, राइट? उतना फर्क नहीं होना चाहिए, है भी नहीं। तो अगर आपकी 5-6% ग्रोथ आ रही है और आप दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट्स हो, तो जाहिर है विदेशी निवेशक बोल रहा है, एंड बाय द वे मेनी ऑफ देम आर माय क्लाइंट्स अनफॉर्चुनेटली, दे आर सेइंग यार सौरभ तुम्हारे देश में ग्रोथ तो है नहीं, 5-6% से मुनाफा ग्रो कर रहा है कॉर्पोरेट्स का, और ये सबसे दिग्गज कॉर्पोरेट्स का, और वैल्यूएशन चढ़ा के रखी है आपने आसमान में। दे आर सेइंग लेट्स एनकैश। इट्स नॉट जस्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स, हमारे देश के प्रमोटर बोल रहे हैं माल बेचो आईपीओ में और पैसा, दे आर टेकिंग इट टू दुबई। अंशुमन और बैठ के बहस कर रहे थे, अब तो दुबई नहीं ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे पता नहीं, बट टिल द ईरान वॉर ब्रोक आउट यहाँ पे माल बेच रहे थे, फटाफट पैसा निकालो दुबई में, फैमिली ऑफिस लगाओ, राइट? सो ये क्यों कर पा रहे हैं? वाई इज द फॉरेनर एबल टू टेक? अंशुमन ने ठीक बोला, मार्च के महीने में फॉरेनर्स टुक आउट $12 बिलियन इन 1 month. जस्ट इमेजिन, right? The year ending March 26, they took out $20 billion. Indian promoters took out around half of that. $10 billion promoters ने हमारे देश के निकाले, $30 बिलियन विदेशी ने 20 निकाला, प्रमोटर ने 10 निकाला, $30 बिलियन निकला। $30 बिलियन किसने दिया? हमारे देश के रिटेल इन्वेस्टर ने। सर एक सवाल जो यहाँ सीईओज जानना चाहते हैं, देयर आर टू पैरेलल थ्योरीज मूविंग इन इंडिया, सीईओज इन्वेस्टिंग इन दैट। दिस इज वन एस्पिरेशनल भारत and that is the second the mass market. Now the सबसे बड़ा चैलेंज भारत के सीईओज और इन्वेस्टर्स के दिमाग में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको नेक्स्ट डिकेड की ग्रोथ के लिए किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वेदर दे विल बी डेवलपिंग प्रोडक्ट्स फॉर एस्पिरेशनल भारत हु आर 3 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ पीपल, आर दे शुड बी लुकिंग फॉर अ मास मार्केट, एंड दिस इज फ्रॉम वेयर आई विल टेक द क्यू फ्रॉम योर बुक। सो हमारे देश में मास मार्केट तो आबादी तो भयंकर है, राइट? 150 करोड़ की आबादी है, सेंसस अभी शुरू हुई है, राइट? सेंसस के बाद शायद 150 करोड़ नहीं, शायद 200 करोड़ की आबादी पता चलेगा। विल सी व्हाट द आबादी रियली इज। जितनी ज़्यादा एक तरफ से अच्छी बात, राइट? जितनी ज़्यादा आबादी उतनी अच्छी बात, बट चैलेंज है आबादी के पास अगर पैसे नहीं है तो वो खरीदेगा क्या? विच इज़ वाई आप देखिए, जो बैक टू द लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड FMCG कंपनीज देखिए, लिस्टेड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज देखिए, ग्रोथ नहीं आ पा रही बिकॉज पब्लिक डजंट हैव मनी। सो इंडिया को हम ब्रॉडली 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, राइट? सो जो 5 लाख के नीचे कमा रहे हैं, 5 lakhs एंड लेस, उनको सरकार के स्कीम्स मिल रहे हैं, राइट? बेटी बचाओ पढ़ाओ, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, अलग अलग सरकार के स्कीम में आप और मैं टैक्स भर रहे हैं और वो पैसा सरकार बांट रही है। इफ़ यू लुक एट द डेटा, दैट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, उसको टैक्स पैसे बांटे जा रहे हैं, और वहाँ पे अराउंड 4-5% वॉल्यूम ग्रोथ दिखती है, रेवेन्यू ग्रोथ 6-7% दिखती है, ठीक है? दिस स्ट्राटा इज ऑलराइट, दिस इज द वोट बैंक, इनको खुश रखना है, नहीं तो इलेक्शन जीतना नामुमकिन हो जाता है। देन देयर इज अ स्ट्राटा अबव 1 करोड़, राइट? तो अगर इनकम टैक्स के डेटा में देखें, 50,000 लोग थे 10 साल पहले, 1 करोड़ का इनकम टैक्स का रिटर्न भरते थे। दैट नंबर इज नाउ 3.5 लाख, 7x ग्रोथ, 4 करोड़ के आसपास, राइट? सो 7x growth in 10 years. Now, this is the IT data. I'm pretty sure it's not 3.5 lakhs people who earn 1 crore or more. The real number must be 9, 10, 11 lakhs. But वो कभी और discuss करेंगे. This strata is doing well. The rich in our country, people like you and me, hopefully, are doing well, right? Which is why आप देखिए विदेशी फैशन ब्रांड्स, Hermes, Louis Vuitton, उनके sales इंडिया में अंशुमन, the विदेशी luxury brands, last 4 years, sales are growing at 20% dollar. आई एम अ शेयर होल्डर इन द विदेशी लग्जरी ब्रांड्स, 20% डॉलर ग्रोथ है, माइंड ब्लोइंग ग्रोथ है, बिकॉज द इंडियन सुपर रिच
आर एब्सोल्युटली रोलिंग इन इट, ठीक है. जो पिसा है, जो सैंडविच इन द मिडिल, जिसका चूरमा बना है, इज द अदर पीपल अर्निंग बिटवीन 5 lakhs to 1 crore. सो हमने किताब छापी है ब्रेक पॉइंट ऑन दिस स्ट्राटा. एज पर भारत सरकार का डेटा 4 करोड़ लोग हैं इंडिया में जो कमाते हैं 5 लाख और 1 करोड़ के बीच में. इनका लास्ट 10 साल में इनकम ग्रोथ इज क्लोज टू जीरो. इसको आप दूसरे तरीके से अटैक कर सकते हो. आप लिस्टेड कंपनी की सैलरी डेटा देखिए. तो एक तो इनकम टैक्स का डेटा जो सरकार के वेबसाइट से आप स्क्रैप करके देखिए. दूसरा है लिस्टेड कंपनी की सैलरी डेटा देखिए. उसमें भी सेम फाइंडिंग दैट 10.5 लाख इज द एवरेज इनकम. जो लोग 5 लाख और 1 करोड़ के बीच में कमाते हैं, सालाना 10.5 लाख कमाते हैं. आज 10 साल पहले भी वही 10.5 लाख कमाते थे. नाउ अब आपको मैं थोड़ी सी गुड न्यूज दे चुका हूं, राइट. 1 करोड़ के ऊपर जो है पार्टी है, बल्ले बल्ले है. 5 लाख और 1 करोड़ के बीच में जो 10.5 लाख की आबादी है, 10.5 लाख की जो कमाई है, फ्लैट है. दीज पीपल पे 70% ऑफ इंडियाज इनकम टैक्स. 70%, राइट. और ये लोग हमारे देश की 40% जीएसटी भरते हैं. दिस स्ट्राटा 5 लाख से 1 करोड़ के बीच, ये हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है. और यहाँ पे जॉब क्रिएशन इज स्टैग्नेंट. तो ये मुद्दा आज हमारे देश के सामने खड़ा हुआ है. दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद ट्रम्प इन अ वे. वी कांट ब्लेम ट्रम्प जी कि आपकी वजह से हमारे देश में बच्चों को जॉब नहीं मिल रहे. वी कांट ब्लेम ट्रम्प जी की या आपकी वजह से हमारी मिडिल क्लास की कमाई नहीं बढ़ रही. दिस इज गॉट अ लॉट टू डू विद आवर डायनामिक्स. एंड आई वुड ऑल्सो से दैट एआई का इसमें योगदान है. एज द जेंटलमैन फ्रॉम फ्रैक्टल एक्सप्लेन्ड, as AI replaces our bachas in our offices, earnings growth gets wiped out. Graduate intake gets wiped out, right? TCS is our largest IT services company. Last 3 साल में आप, do you know how many people TCS has hired? TCS's head count is 5 lakh people. In the last 3 years, they've hired 17 people, 17 लोग हायर किए हैं हमारे देश के सबसे बड़े IT सर्विसेज कंपनी ने. Right, that's the situation we are at, and which is why I would submit to you 120 करोड़ का जमीन वाला हॉस्पिटल में चैलेंज रहेगा. Acha, sir, there are industrialists and investors in this hall. They'll be creating an export franchise, or they are investing in export. You are also looking forward to the global investing through your Gift City fund. 5 stories of the export India you see will have a strong tailwind in the future. So by the way, one of the reasons I came was to find exporters, because I think manufactured goods exporters का इंडिया में नेक्स्ट 5 साल अच्छा जाएगा. क्यों अच्छा जाएगा? करेंसी हमारी 100 की तरफ जा रही है, आई थिंक 110 की तरफ जाएगी उसके बाद. वाई विल इट गो? एक्सप्लेन, राइट. आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमारे ठप पड़ रहे हैं धीरे धीरे. अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आईटी सर्विसेज, जाहिर है करेंसी पे प्रेशर आएगा. एक बार करेंसी पे प्रेशर आएगा, हमारे एक्सपोर्टर्स पहली बार, अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्टर्स पहली बार वर्ल्ड स्टेज में कॉम्पिटिटिव बनने वाले हैं, पहली बार. दूसरी वजह है, जो एफटीए सरकार ने यूरोप के साथ नेगोशिएट किया है, इट्स अ फर्स्ट क्लास एफटीए, सुपर एफटीए नेगोशिएट किया यूरोप के साथ. यूके के साथ भी अच्छा एफटीए, बट यूके थोड़ा छोटा मार्केट है, यूरोप बड़ी मार्केट है, राइट. तीसरी वजह है, वेस्टर्न वर्ल्ड, यूके, यूरोप, अमेरिका वांट टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम चाइना. ठीक है, तो 3 सॉलिड रीजंस वाई हमारे देश के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्टर मोटा कमाएंगे, बड़ा कमाएंगे. अगला दशक विल बी नॉट अबाउट डोमेस्टिक कंजम्पशन. अगला दशक विल बी अबाउट विच इंडियन कंपनी कैन क्रैक ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट्स एट स्केल. ठीक है, नाउ टेकिंग अ क्यू फ्रॉम अंशुमान, मैं आपको 5 सेक्टर देता हूं जहां पे बड़ा पैसा बनेगा एक्सपोर्ट्स में. पहला है कपड़ा, टेक्सटाइल्स. Till the EU FTA, right, Bangladesh had a 14% advantage on us because they had preferential access into Europe. So famously, Bangladesh was exporting 2x as much textiles as India. So preferential access Bangladesh की हट जाएगी. अगले साल जून से we will be at parity with Bangladesh on tariffs. Currency टूटती रहेगी. We'll actually, I think, be more than cost competitive with Bangladesh. So textiles में हम दबा के पैसा लगा रहे हैं, पूरा देश घूम रहे हैं, तिरुपुर, तमिलनाडु में, गुजरात में घूम रहे हैं. आपके यहाँ पे टेक्सटाइल्स का उतना बोलबाला नहीं है, बट साउथ इंडिया, लुधियाना इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट. घुस जाएंगे. लुधियाना में एक बड़ी कंपनी है, उससे बात कर रहे हैं. सो टेक्सटाइल्स पहला एरिया. दूसरा प्रिसिशन इंजीनियरिंग, राइट. प्रिसिशन इंजीनियरिंग, फोर्ज्ड पार्ट्स, ऑटो एंसिलरीज विद इन दैट. वहाँ पे दूसरा क्षेत्र है
जहाँ पे हमारी देश पहले वियतनाम के मुकाबले, चाइना के मुकाबले पिट रही थी, EU FTA के बाद वो डिसएडवांटेज चला जाएगा। ऑटो एंसिलरीज, प्रेसिशन इंजीनियरिंग, मेरे ख्याल से हमारे देश में अच्छे कंपनीज हैं जो अगले 10 साल में अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। तीसरा क्षेत्र ऑटो OEMs, राइट, ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स, छोटी गाड़ियाँ, राइट। वंस अगेन वी वर बिहाइंड ऑन कॉम्पेरेटिवनेस, partly because our tariffs were, the Europeans were taxing us more than they were taxing other countries. चौथा क्षेत्र sports goods and जूता। स्पोर्ट्स गुड्स एंड जूता, आई थिंक आई एम इन द राइट स्टेट फॉर दैट, राइट। आई थिंक मेरठ, कुछ यूपी में है, कुछ पंजाब में है। पंजाब में स्पोर्ट्स गुड्स एंड जूता, अगेन सेम स्टोरी, बड़ा एडवांटेज मिलेगा। एंड फाइनल एरिया इज खान पान का सामान, राइट। खान पान का सामान जो हम यहाँ पे कुड़मुड़िया खाते हैं, अब वो कुड़मुड़िया उनको बेचेंगे, राइट। सो मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स में फोकस कीजिए। एज द करेंसी गोज डाउन, एज द FTA कम्स इन, वहाँ पे पैसे अच्छे बनेंगे। होपफुली चंडीगढ़ के कुछ कंपनीज है जिसमें मैंने थोड़े पैसे लगाए हैं, होपफुली मेरे को कमा के देंगे, फिर मैं विदेशी प्लेन में एयरबस के फ्लाइट में आपके शहर में आने के मेरे पास पैसे होंगे। Saurabh, two last segment. One is the last question about 2040, and then we'll do a very rapid fire round with Saurabh. You will enjoy it. He'll respond without thinking, without blinking. Just one question, one answer. We'll play that rapid fire round. But last question is about it. Saurabh, pin 2040. Trump is history, Tehran is settled, India has navigated war, AI disruption, energy crisis, DII ownership shift, everything has been settled. How the super cycle of India in 2040 would like? 40. Yeah. How it would look like? If you want to paint it like that. So obviously you are selling this dream to your investors. मैंने मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाया है, बट फिर अगर ये मेरा सुपर साइकिल का सपना या अंशुमान के सुपर साइकिल का सपना साकार होना है, 3 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट, वी नीड लैंड टू बी चीपर, राइट। जोक्स अपार्ट, आपके स्टेट में, मेरे स्टेट में, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में रहता हूँ मैं, लैंड इज द सेम प्राइस एज वेस्टर्न यूरोप। लैंड इन महाराष्ट्र इज द सेम प्राइस एज वेस्टर्न यूरोप। आप पुणे आइए, नासिक आइए, जिस भाव पे इंडस्ट्रियल लैंड मिलेगी, हॉलैंड में भी उसी भाव में मिलती है, राइट। इट इज सिंपली नॉट कॉम्पिटिटिव। सो वी नीड लैंड प्राइसेस टू करेक्ट। नाउ मे बी आवर नेताज डोंट वांट लैंड प्राइसेस टू करेक्ट, फिर क्या करना पड़ेगा? FSI बढ़ानी पड़ेगी, मल्टी स्टोरीड फैक्ट्री अलाउ करनी पड़ेगी। वो चाइना में है, जर्मनी में है, बांग्लादेश में भी मल्टी स्टोरीड फैक्ट्री है यार, हमारे देश में क्यों नहीं है? सो मल्टी स्टोरीड फैक्ट्री आई थिंक इज वन वे टू डील विद इट। सो वी नीड लैंड प्राइसेस टू गो डाउन, वी नीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू फॉल। हमारे देश में वर्किंग कैपिटल का कॉस्ट कितना है? आप लोग यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितना देते हो? 10, 11, 12, ठीक है। SMA के लिए 14 है। चलो 9% यहाँ के बड़े उद्योगपति हैं, 9 मान लेते हैं। वियतनाम में 3% देते हैं। चलो अमेरिका में 3 देते हो तो रिच कंट्री है, वियतनाम में 3% देते हैं। भैया हाउ द हेल आर वी सपोज्ड टू कम्पीट? अगर हम वियतनाम के साथ कम्पीट कर रहे हैं, लैंड का भाव 50% ज़्यादा है उनके मुकाबले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 3x एज हाई, वी कांट कम्पीट। सो सुपर साइकिल आने के लिए जमीन सस्ती, कैपिटल सस्ती, FTA पीयूष गोयल जी नेगोशिएट कर चुके हैं, बिग टेक, करेंसी नीचे जा रही है, उसको रोकना मुश्किल होगा, बिग टेक, राइट। अगर ये वाला माहौल बन गया, FTAs आर देयर, लैंड इज चीपर, capital gets cheaper, currency gets cheaper, we will blast the rooftops out on manufacturing. But मैं निवेशक हूँ, I have to manage my clients' interests as well. So in case ये नहीं हुआ, मैं क्या करूँगा? Last 4 साल से जो कर रहा हूँ, so last 4 years ago मैं क्या किया? मैं US और यूरोप गया, वहाँ पे एक टीम बनाई, लाइसेंस ली, और वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, so defense and aerospace companies in Europe, पावर जनरेशन कंपनीज इन यूरोप, डेटा सेंटर बिल्ड आउट कंपनीज इन यूरोप, वो खरीद लिए हमने। बिकॉज इन केस हमारे देश का सपना साकार नहीं होता, पैसे फिर भी कमाने हैं, एंड वी आर अर्निंग दैट बाय सिटिंग इन इंडिया एंड थ्रू गिफ्ट सिटी इन गुजरात। थ्रू गिफ्ट सिटी इन गुजरात वी आर इन्वेस्टिंग हाफ आवर मनी into Europe, America, Taiwan, Korea in manufacturing, specifically Yes. defense and aerospace, power generation, transmission, distribution, data center build out and ultra luxury, right? Because दुनिया में क्या हो रहा है? The world is seeing the largest wave of capex ever seen. इतना युद्ध है, इतना पावर का जरूरत है, जिस पैमाने पे कैपेक्स आज दुनिया में हो रहा है, कभी इतिहास में नहीं हुआ है। So as a result, सालाना $400 बिलियनर बन रहे हैं। So the number of dollar billionaires is going up at 7-8%, right? Now dollar billionaire को क्या चाहिए जिंदगी में?
He wants other people to say, यार ये देखो इतना कितना powerful आदमी है, कितना rich आदमी है. How does he do that? He or she buys things that other people don't have. So for men they buy Ferraris, for the women they buy Birkin bags. So 4 साल पहले हमने बोला अल्ट्रा लग्जरी का सारा कुछ उठा लेते हैं यूरोप से, पेरिस और मिलान में लिस्टेड है, वो खरीद लो. लेडीज विल बाय $2 million के बर्किन बैग एंड द मैन विल बाय $2 million की फेरारी, और हम चुपचाप बॉम्बे में बैठ के कुछ पैसे कमा लेंगे. तो रैपिड फायर सौरभ, बिफोर दैट बिकॉज टाइम हैज अप ऑलरेडी केम एंड शी इज स्टैंडिंग देयर. ट्रम्प, तेहरान एंड पाकिस्तान rank the 3 long-term damage to the India's growth story and worst first. I would have said, अगर हम 48 घंटे पहले मिलते, I would have said Trump. But given तो अगले 72 घंटे में इस्लामाबाद में होने वाला है. पाकिस्तान will be one. By the way, folks, अगले 72 घंटे में इस्लामाबाद में बहुत कुछ होने वाला है. बहुत close नजर रखिएगा. I think by Sunday evening, Pakistan could be our biggest threat. By Sunday evening, Pakistan could be a far bigger threat for us than it's ever been. Watch very carefully what happens in Islamabad in the next 72 hours. FI is selling, DI is buying, SIP holding. Who do you trust most in India's market right now? I think मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है हमारे देश के प्रमोटर कम्युनिटी पे. हमारे सामने बैठे हैं प्रमोटर कम्युनिटी, मुझे बोल रही है कि कैपेक्स यहाँ नहीं विदेश में करना चाहिए. प्रमोटर कम्युनिटी बोल रही है यहाँ से IPO करो, पैसा निकालो, फैमिली ऑफिस विदेश में लगाओ. सो आई एम फॉलोइंग द इंडियन प्रमोटर, दैट्स वेयर द स्मार्ट मनी इज. सौरभ यहाँ है तो आप लोग कुछ टिप्स भी इनसे ले लें. टेल मी वन सेक्टर विच यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट राइट नाउ एंड वन यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट, यू विल कीप स्टे अवे फ्रॉम. बोल रहा था मैं टेक्सटाइल्स में लगा रहा हूँ, प्रेसिजन इंजीनियरिंग में लगा रहा हूँ, ऑटो एंसिलरी में लगा रहा हूँ इंडिया में, और विदेश में लगा रहा हूँ डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड पावर जनरेशन. देयर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑफ 35-40 प्लस. इनकी नेटवर्थ का कितना % अब्रॉड में इन्वेस्ट होना चाहिए एज पर योर राइट नाउ? सो सिंपल सा रूल ऑफ थंब देता हूँ. पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट का 4% है हमारा देश, राइट. करीबन 55% है अमेरिका, 20% है यूरोप एंड करीबन 20% है चाइना एंड ईस्ट एशिया. सो नाउ 4% इंडिया है, दैट डजंट मीन यू शुड पुट ओनली 4% ऑफ योर मनी हियर. यू एंड आई लिव हियर, so I think आधा यहाँ पे डालना बनता है. So I put half my money in India and I put half my money through Gujarat, through Gift City. आधा पैसा हम विदेश में लगाते हैं. Last question, 2040 super cycle. This is a theme which is getting discussed in the government right now and it will come in the picture. So I thought सस्ती जमीन चाहिए, सस्ता कैपिटल. 2040 super cycle, there are 3 options already underway, 5 years delayed. अरे हम कहानी सुना रहे हैं अभी केवल. नहीं, आएगा सुपर साइकिल, बट फर्क इतना है एंड दैट्स व्हाई ये जो किताब मैंने लिखी है ब्रेक पॉइंट, पढ़िएगा, अमेजोन में मिलती है. कोई भी देश, वो अमेरिका हो चाइना हो, कोई भी देश 30 साल से ज़्यादा सेम बिजनेस मॉडल पे नहीं चलता है. एवरी 30-35 ईयर्स पूरा सागर मंथन होता है. सो जिस मॉडल पे आज अमेरिका चल रहा है, 90 के दशक में अमेरिका वॉजंट रनिंग ऑन दैट. 90 के दशक में अमेरिका वॉज प्राइमरीली अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी. आज अमेरिका इज प्राइमरीली अ टेक इकोनॉमी. जिस मॉडल पे आज चाइना चल रहा है, 90 के दशक में चाइना नहीं चल रहा था, राइट. तो इंडिया का जो आज का मॉडल है, दैट स्टिल द 90s मॉडल. ये मॉडल अगले 2-3 साल में सागर मंथन होगा. आज से अगर 4-5 साल बाद अगर आप मुझे बुलाओ, आर मॉडल विल बी वेरी डिफरेंट. 4-5 साल बाद इंडिया का मॉडल मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के आसपास मेरे ख्याल से आधारित होगा. ये IT सर्विसेज बेच के कंजम्पशन वाली मॉडल मेरे ख्याल से टूट रही है, हमारे सामने टूट रही है. थैंक यू सौरभ. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. I would now like to invite Mr. Nitin Jain and Dr. Rajdeep Singh to please join us on the stage for felicitations.
Let us have a big round of applause. Thank you, everyone.